یہ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر 6 سال تھی اور نام تھا شہزادہ شامی۔ شہزادہ شامی اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر دوسرے بچوں کی طرح اس کی بھی باپ سے محبت صرف دن دن کی ہی ہوا کرتی تھی۔ رات کو وہ اپنی ماں ملکہ حسن بانو کے پیچھے لگ جاتا، وہ اسے کھانا کھلاتی، شب خوابی کا لباس پہناتی، پھر اپنے پاس لٹا کر چڑیا چڑے کی کہانی سناتی۔ کہانی سنتے سنتے ہی وہ سو جایا کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ کو کسی کام سے دوسرے ملک جانا پڑ گیا۔ جب وہ سفر پر روانہ ہونے لگا تو شہزادہ شامی ضد کرنے لگا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت محبت تھی، اس کی ضد دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ کی پریشانی دیکھ کر ملکہ حسن بانو نے ہنس کر کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں شہزادے کو بہلا لوں گی۔ ہمارا شہزادہ ضد تھوڑا ہی کرتا ہے، ضد تو گندے بچے کرتے ہیں۔ امی حضور، ہم ضد نہیں کر رہے، ہم تو صرف ابا حضور کے ساتھ جانے کو کہہ رہے ہیں۔ شہزادہ شامی نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن شہزادے اگر آپ چلے گئے تو پھر آپ کی پڑھائی لکھائی کا کیا ہوگا؟ آپ کے تعلق پوچھیں گے نہیں کہ شہزادے صاحب کہاں چلے گئے؟ ملکہ نے کہا، تو پھر آپ ایسا کریں کہ ہمارے اتلیق کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم وہاں پڑھ لکھ بھی لیا کریں گے، اس طرح ہماری تعلیم کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ شہزادے نے خوش ہو کر کہا، لیکن شہزادے یہ بھی تو دیکھیے، آپ کے ابا حضور بھی چلے جائیں گے، آپ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، میں یہاں اکیلی رہ کر کیا کروں گی؟ پھر جشن بہاراں کا میلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس دفعہ ہمارے ملک میں خدا کے فضل سے فصلیں بہت اچھی ہوئی ہیں۔ اس خوشی میں پورے ملک کے کسان اس میلے میں شرکت کے لیے آئیں گے۔ طرح طرح کے کھیل تماشے ہوں گے، جانوروں کی نمائش ہوگی، بڑے بڑے جھولے لگے ہوں گے، نٹ مزے مزے کا کرتب دکھا رہے ہوں گے، گھوڑوں اور اونٹوں کا ناچ ہوگا جو ڈول تاشوں کی آواز پر رقص کر رہے ہوں گے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ شہزادہ شامی کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے پہلی دفعہ سنا تھا کہ گھوڑے اور اونٹ بھی رقص کرتے ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، آپ سفر پر روانہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ امی حضور محل میں اکیلی ہوں گی، رات کو اگر کوئی بھوت یا چڑیل آ گئی تو کیا ہوگا؟ ہم ان کے پاس ہی رہیں گے۔ شہزادے شامی کا یہ معصوم سا بہانہ سن کر بادشاہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میلے کے متعلق باتیں سن کر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ اس نے کہا، بیٹے، جب تم میلہ دیکھنے جاؤ تو اپنی امی حضور کے ساتھ ساتھ ہی رہنا، وہاں بہت زیادہ بھیڑ باڑ ہوتی ہے، کہیں کھو مت جانا۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنے وزیر اور سپاہیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ چند روز بعد ملکہ شہزادے کو اپنے ساتھ میلہ دکھانے کے لیے لے گئیں۔ یہ میلہ مسلسل 1 ماہ تک لگتا تھا۔ وہ اور شہزادہ ایک بگی میں سوار تھے اور بہت سے سپاہی ان کے ہمراہ تھے۔ میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگا تھا۔ بانت بانت کے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ جگہ جگہ کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے کے لیے خوانچہ فروش ادھر سے ادھر گھومتے پھر رہے تھے۔ رنگ برنگے گاگرے پہنی عورتیں لکڑی اور مٹی کے کھلونے بیچ رہی تھیں۔ میلے میں یہ چہل پہل دیکھ کر شہزادہ شامی کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس نے چپکے سے ملکہ کے کان میں کہا، اچھا ہوا ہم ابا حضور کے ساتھ نہیں گئے۔ اس کی بات سن کر ملکہ مسکرانے لگی۔ ایک جگہ شہزادہ نے بہت سے لوگوں کو بڑے بڑے ڈول بجاتے دیکھا۔ یہ منظر اس کو اتنا پسند آیا کہ اس نے کھڑکی میں سے سر نکال کر بگی بان سے کہا کہ وہ بگی روک دے۔ پھر وہ دلچسپی سے ڈول بجانے والوں کو دیکھنے لگا۔ ان ڈولوں کو انہوں نے گلے سے لٹکا رکھا تھا اور لکڑی کی موٹی موٹی چھڑیوں سے زور زور سے بجا رہے تھے۔ ڈول بجانے والوں نے زرد رنگ کے لباس پہن رکھے تھے اور سر پر سرخ رنگ کے صافے باندھے ہوئے تھے۔ شہزادے نے اپنی زندگی میں ڈول پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بگی چلانے والے سے پوچھا، یہ کیا چیز ہے اور اس میں سے اتنی تیز آواز کیوں آ رہی ہے؟ شہزادے کی بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور بولا، شہزادے صاحب، اس کا نام ڈول ہے اور لوگ اسے خوشیوں کے موقعوں پر بجاتے ہیں۔ انہیں شیشم کی لکڑی اور بھینس کی کھال سے بنایا جاتا ہے اور انہیں بانس کی چھڑی سے بجایا جاتا ہے۔ یہ تمام معلومات شہزادہ شامی کے لیے بالکل نہیں تھی۔ اس نے انہیں بڑی حیرت اور دلچسپی سے سنا۔ کافی دیر گھومنے پھرنے کے بعد وہ لوگ محل لوٹے۔ شہزادہ شامی کی آنکھیں کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس نے ملکہ سے کہا، امی حضور، ہمیں ایک بڑا سا ڈول چاہیے، ہم اسے بجائیں گے ویسے ہی جیسے وہ لوگ بجا رہے تھے۔ ملکہ نے کہا، شہزادے جانی، ہم آپ کو ڈول نہیں دلائیں گے، آپ ایک شہزادے ہیں، شہزادے ڈول نہیں بجاتے۔ یہ بھی تو سوچئے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک شہزادہ ڈول بجا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو منع کر دیں گے کہ وہ ایسا نہ سوچیں، بس صبح آپ ہمیں ایک ڈول منگوا کر دے دیجئے گا۔ شہزادے نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور تھوڑی دیر بعد سو گیا۔ صبح ملکہ تو اس بات کو بھول بھی چکی تھی، مگر شہزادے نے اٹھتے ساتھ ہی اس کے بارے میں پوچھا۔ ملکہ اس کی ضد سے تنگ آ گئی تھی۔ اس نے اسے ڈانٹ دیا۔ ڈانٹ سن کر شہزادہ رونے لگا۔ ملکہ نے کہا، کل آپ کے ابا حضور تشریف لے آئیں گے، ہم
उनसे आपकी शिकायत करेंगे। आप कैसे बच्चे हैं कि अपने शौक की खातर माँ बाप की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है। मलका के सख्त जुमले सुनकर शहजादा खामोश तो हो गया, मगर दोपहर तक उसे तेज बुखार ने आ लिया। उस पर नींद बेहोशी तारी हो गई थी और वो गनूदगी में भी बड़बड़ा रहा था, मुझे डोल चाहिए, मैं डोल बजाऊंगा। उसकी हालत देखकर मलका घबरा गई और महल के तबीबों को तलब कर लिया। उन्होंने शहजादे का मुआयना किया, उसको दुआएं दी। उनमें से एक तबीब ने मलका से कहा कि शहजादे साहब जिद में आए हुए हैं और किसी बात को जहन पर सवार कर लिया है। ऐसे हालात में दवाएं असर नहीं करती। शहजादे का बुखार उसी वक्त उतरेगा जब उनकी जिद पूरी कर दी जाएगी। ये कहकर तबीब तो चले गए, मगर मलका परेशान हो गई। सारी रात इस परेशानी में गुजर गई। शहजादे का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह ही सुबह कनीजों और गुलामों का शोरो गोगा मचा। पाशा सलामा तशरीफ ले आए हैं, मुबारक हो, सलामत हो। मलका दौड़कर खिड़की के नजदीक गई। बादशाह महल के सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। वो सीधा मलका के पास आया। उसने मलका का परेशान चेहरा देखा तो खुद भी परेशान हो गया। मलका आलिया, क्या बात है, आप कुछ परेशान सी नजर आती हैं। मलका ने जल्दी जल्दी उसे शहजादे की जिद के बारे में बताया और बोली, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ना कभी सुना ना कभी देखा कि एक शहजादा ढोल बजा रहा है। शहजादे ने तो अजीब जिद लगाई है। बादशाह उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और शहजादे के पास बैठते हुए बोला, अब हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। ताज्जुब है मलका, आप इतनी सी बात से परेशान हो गई हैं। शहजादा बच्चा है, बच्चे तो जिद करते ही हैं। आपने कभी हमें जिद करते हुए देखा है? हम भी बचपन में बहुत जिद्दी थे, मगर बड़े होकर ठीक हो गए हैं। बड़े होकर सब ठीक हो जाते हैं। शहजादे को तेज बुखार था और वह नींद बेहोश सा था। बादशाह ने उसे गोद में उठाया और आवाज दी। बादशाह की आवाज सुनकर शहजादे ने आंखें खोल दी। बाप को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने बादशाह के गले में बाहें डाल दी। बादशाह ने उसे बिस्तर पर बिठाया और फिर ताली बजाई। कमरे के दरवाजे पर मौजूद दरबान अंदर आया। हमारे सामान में एक खूबसूरत चमड़े का संदूक है, उसे पेश किया जाए, बादशाह ने दरबान से कहा। दरबान ने झुककर कहा, अभी हाजिर किया जाता है हुजूर। ये कहकर वो चला गया। थोड़ी देर में एक गुलाम वही संदूक लेकर हाजिर हो गया और दीवार के साथ रखी लकड़ी की मेज पर रखकर रुखसत हो गया। शहजादे, हमें अफसोस है कि आप बीमार हो गए हैं, मगर हम आपके लिए जो चीजें लेकर आए हैं उन्हें देखकर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बादशाह की बात सुनकर शहजादा झट से उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी थीं। मलका उसे खुश देखकर खुद भी खुश हो गई और कहने लगी, देखिए शहजादे, आपके अब्बा हुजूर आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाए हैं। चलिए अब हमसे वादा करें कि इसके बाद डोल की जिद नहीं करेंगे। डोल का नाम सुनकर शहजादे को फिर सब कुछ याद आ गया। वादा तो वो क्या करता। उसने कुट्टी वाली उंगली मलका को दिखाई और दूसरी तरफ घूमकर घुटनों में मुंह देकर बैठ गया। उसकी इस हरकत पर मलका चिढ़ गई। जल कर बोली, ठीक है, आपके अब्बा हुजूर तशरीफ ले आए हैं, खुद ही निमट लेंगे। बादशाह मुस्कुराते हुए उठा। शहजादे को एहसास हो गया कि बादशाह बिस्तर से उठ गया है। उसने घुटनों में सर दिए दिए एक बाजू थोड़ा सा उठाकर उसे देखने की कोशिश की। बादशाह मेज पर रखे संदूक की जानब जा रहा था। शहजादा दिल में सोचने लगा, जाने अब्बा हुजूर मेरे लिए क्या लाए हैं। अचानक थोड़ी देर बाद उसके कानों में आवाज गूंजी, डम डमा ढम ढम। उसने चौंक कर पीछे घूम कर देखा तो क्या देखता है, बादशाह के हाथों में एक बड़ा सा डोल है और उसमें एक पट्टी भी मौजूद है ताकि उसे गले में लटका लिया जाए। शहजादा जल्दी से बिस्तर से छलांग मारकर नीचे उतरा और बादशाह के पास पहुंच गया। मारे खुशी के उसका बुरा हाल था। मलका हैरत के मारे गुमसुम होकर रह गई थी। बादशाह उसकी हैरानी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। प्यारी मलका, अभी तो आप मजीद हैरान होंगी, इस संदूक में ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं। शहजादे ने खुशी से तालियां बजाते हुए कहा, अब्बा हुजूर आप कितने अच्छे हैं। शहजादे को जितनी जल्दी बुखार चढ़ा था, डोल को देखकर उतनी ही जल्दी उतर भी गया था। बादशाह ने मलका से कहा, हम जब अपने दोस्त के मुल्क में पहुँचे तो वहाँ भी जश्न बहारा मनाया जा रहा था। उनका भी बेटा हमारे शहजादे जितना है। अपने बेटे को उन्होंने एक किसान का स्वांग भरवाया जिसकी फसल बहुत अच्छी होती है और वो उस खुशी का इजहार डोल बजाकर करता है। ये तमाशा हमने अपने दोस्त बादशाह और उनकी मलका के साथ देखा था और हमें इतना पसंद आया कि हमने भी फैसला कर लिया कि अपने शहजादे को किसान बनाकर इस मेले में खुद भी शिरकत करेंगे। हमारे इस फैसले से हमारे दोस्त बादशाह भी बहुत खुश थे। उन्होंने ये डोल और शहजादे के रंग बिरंगे कपड़े हमें तोहफे में दिए हैं। उन्होंने हमें एक बड़े काम की बात भी बताई। उन्होंने कहा कि हम हर साल जश्न बहारा के मौका पर अपनी राया में उन्हीं की तरह का कोई बेस बदल कर उनकी खुशियों में शिरकत करते हैं। कभी मजदूर बन गए, कभी ताजर, कभी फल बेचने वाला, कभी धोबी, कभी हजाम और कभी गली मोहल्लों में झाड़ू लगाने वाला खाकरूब। हमारे
हमारी इन बातों से वो लोग बहुत खुश होते हैं कि उनका बादशाह उनकी खुशियों में भरपूर तरीके से शिरकत करता है और कोई सा भी रूप धार कर उसमें कोई शर्म महसूस नहीं करता। मलका हैरानी से बादशाह की बातें सुन रही थी। बादशाह खामोश हुआ तो वो बोली, हम तो नाहक शहजादे की फरमाइश सुनकर परेशान हो गए थे कि जब वो ढोल बजाएगा तो लोग क्या कहेंगे। हमें अफसोस है कि हमारी वजह से हमारा शहजादा बीमार पड़ गया था। वाकई अपनी राया के साथ घुल मिल जाना कोई बुरी बात नहीं है। फिर बादशाह ने शहजादे को वो कपड़े दिखाए जो उसके दोस्त बादशाह ने उसके लिए दिए थे। इन कपड़ों में सफेद पजामा, पीले रंग का कुर्ता, गुलाबी रंग की वास्केट और हल्के नीले रंग का साफा था। पाँव में पहनने के लिए सुनहरी कामदारी खुसे थे। इन चीजों को देखकर शहजादा तो बहुत ही खुश हुआ। बादशाह ने उसी वक्त अपने वजीर को बुलाकर उसे हदायत की कि वो कल मेले में एक पंडाल का इंतजाम करवा दे, क्योंकि वो मलका और शहजादे के साथ मेले में शिरकत करेगा। अगले रोज सब मेले में पहुँचे। शहजादा किसान के रूप में बहुत खूबसूरत लग रहा था। बादशाह ने उसे बग्गी के अंदर ही छुपाया हुआ था। मेले में पहुंचकर जब सब अपनी अपनी जगह बैठ गए तो वजीर ने ऐलान किया कि अब उनके सामने एक ऐसे किसान को पेश किया जाएगा जिसकी फसलें बहुत अच्छी हुई हैं और वो खुशी से निहाल है। इस ऐलान के बाद शहजादा शामी बग्गी से निकला। लोगों ने जब अपने शहजादे को किसान के रूप में देखा तो वो खुशी से बेहाल हो गए। लोगों ने शहजादे को खुश आमदीद कहने के लिए तालियां बजाई। जिनको सीटी बजाना आती थी उन्होंने सीटियां बजाई। बाकी लोग मुख्तलिफ नारे लगा रहे थे। इसी दौरान वहाँ से कुछ लोग ढोल बजाते हुए निकल रहे थे। उन्होंने जब शहजादे को किसान बना देखा तो वो वहीं रुक गए। वो जोर जोर से ढोल बजा रहे थे। शहजादा भी उनके पास पहुंच गया और खुद भी ढोल बजाने लगा। ये तमाशा काफी देर तक चलता रहा। शहजादे को खुश देखकर बादशाह और मलका भी बहुत खुश थे। मेले में शिरकत करने वालों की भी खुशियाँ दुबाला हो गयी थी। दोपहर हुई तो बादशाह ने वापसी की ठानी। अभी वो लोग वहाँ से रवाना नहीं हुए थे कि शहजादे ने एक नौजवान को देखा। उसके पास घोड़े का एक बहुत छोटा सा खूबसूरत बच्चा था। शहजादा उस घोड़े के बच्चे को देखते का देखता रह गया। वो था ही इतना खूबसूरत। वो नौजवान शहजादे के पास आया और बोला, शहजादे साहब, मेरे पास कितना खूबसूरत घोड़े का बच्चा है। अगर आप अपना ढोल मुझे दे दें तो मैं इसके बदले में ये घोड़े का बच्चा आपको दे दूंगा। सच्ची बात ये थी कि शहजादा ढोल बजा बजा कर थक गया था। उसको गले में लटकाए लटकाए उसकी गर्दन में भी दर्द हो गया था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसके कान अभी तक साई साई कर रहे थे। उसे ढोल में यकदम कई बुराइयां नजर आने लगी और चमकदार आंखों वाला घोड़े का बच्चा अच्छा लगने लगा। उसने मलका से कहा, अम्मी हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं अपना ढोल देकर घोड़े का ये प्यारा सा बच्चा ले लूं। मलका ने फौरन इजाजत दे दी। शहजादे ने ढोल देकर घोड़े का बच्चा लिया और खुशी खुशी महल आ गया। महल पहुंचकर वो इसको लेकर बाग में पहुंचा और इसके साथ खेलने लगा। शहजादा शामी दौड़कर उससे दूर जाता और इशारे से उसे बुलाता तो वो भाग कर उसके पास पहुंच जाता। बादशाह और मलका अपने कमरे की खिड़की में ये सब कुछ देख रहे थे। बादशाह ने मलका से कहा, देखा, हमने थोड़ी सी समझदारी से काम लिया तो शहजादे की तवज्जो उस ढोल की तरफ से हट गई। उस नौजवान को हमने ही घोड़े का बच्चा लेकर भेजा था। मलका मुस्कुराते हुए बोली, शहजादे के इस शौक से मैं तो परेशान हो गई थी। खुदा का शुक्र है कि आपकी अक्लमंदी काम आ गई। बादशाह ने कहा, मलका, इतनी उम्र के बच्चे अजीब अजीब जिद्दें करते हैं। माँ बाप को चाहिए कि वो इस मामले में सब्र तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा करें। ऐसे मामलात में गुस्सा करना और बच्चों पर सख्ती करना मुनासिब नहीं। देखा नहीं, इस जरा सी बात की वजह से शहजादे ने अपने जहन पर कितना असर ले लिया था और बीमार पड़ गया था। बात हालांकि मामूली थी। मलका शर्मसारी से बोली, गलती मेरी थी। अगर मैं नरमी से काम लेती तो शहजादा जिद में आकर बीमार भी नहीं होता। बच्चों की जिद्दें अगर बेजरर हों तो उन्हें मानने में कोई हर्ज नहीं। उसी वक्त उनके कानों में शहजादे के हंसने की आवाज आई। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, शहजादा इस कोने से उस कोने तक घोड़े के बच्चे से दौड़कर मुकाबला कर रहा था। घोड़े का बच्चा हालांकि तेज भाग रहा था मगर शहजादा शामी के भागने की रफ्तार ज्यादा थी और वो जीत गया था। ये मंजर देखकर बादशाह और मलका भी मुस्कुराने लगे। Subscribe to my channel.